بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کے سبق کا عنوان ہے غزلیات میر تقی میر، غزل نمبر 1۔ غزل کا جائزہ لینے سے پہلے میر کے حالات زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ میر تقی میر پیدائش 28 مئی 1723، وفات 22 ستمبر 1810۔ اصل نام میر محمد تقی، اردو کے عظیم شاعر تھے۔ میر ان کا تخلص تھا۔ اردو شاعری میں میر تقی میر کا مقام بہت اونچا ہے۔ انہیں ناقدین اور شعراء متاخرین نے خدائے سخن کے خطاب سے نوازا۔ وہ اپنے زمانے کے ایک منفرد شاعر تھے۔ میر تقی میر آگرہ میں 1723 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام علی متقی تھا اور وہ درویش گوشہ نشین تھے۔ میر کم عمری میں یتیم ہو گئے۔ بھائیوں کے برے سلوک کی وجہ سے فکر معاش میں بھٹکتے رہے۔ کچھ غم دورہ یعنی زمانے کے غم اور کچھ غم جانا یعنی کہ محبوب کے غم سے جنون کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میر کا زمانہ شورشوں اور فتنہ اور فساد کا زمانہ تھا۔ ہر طرف تنگ دستی اور مشکلات برداشت کرنے کے بعد بالآخر میر گوشہ عافیت یعنی سکون کی تلاش میں لکھنؤ روانہ ہوئے اور سفر کی صعوبتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے لکھنؤ جا پہنچے۔ وہاں ان کی شاعری کی دھوم مچ گئی۔ نواب آصف الدولہ نے 300 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا اور میر آرام سے زندگی بسر کرنے لگے، لیکن اپنی تیز مزاجی کی وجہ سے کسی بات پر ناراض ہو کر دربار سے الگ ہو گئے۔ آخری 3 سالوں میں جوان بیٹی اور بیوی کے انتقال نے صدمات میں اور اضافہ کر دیا۔ آخر اقلیم سخن کا یہ ہرما نصیب شہنشاہ 87 سال کی عمر پا کر 1810 میں لکھنؤ کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ میر کی زندگی کے بارے میں معلومات کا اہم ذریعہ ان کی سوانح عمری ذکر میر ہے، جو ان کے بچپن سے لکھنؤ میں ان کے قیام کے آغاز کی مدت پر محیط ہے۔ میر تقی میر، غزل نمبر 1۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ہستی زندگی کو کہا جاتا ہے اور حباب سے مراد ہے پانی کا بلبلہ، نمائش سے مراد ہے دکھاوا یعنی کہ دنیا، اور سراب سے مراد ہے دھوکہ۔ یہ شعر دراصل تشبیہ کی عمدہ مثال ہے۔ یہاں زندگی کو پانی کے بلبلے کے ساتھ اور اس دنیا کو دھوکے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ شعر کا مرکزی خیال کچھ یوں ہے: انسان کی زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے اور دنیا محض دھوکہ ہے۔ تشریح اگر دیکھی جائے تو یہ دنیا اپنی ناپائیداری، اختصار یعنی مختصر ہونے اور غیر یقینی ہونے کی وجہ سے پانی کے بلبلے کی حیثیت رکھتی ہے، جو کہ پانی کی سطح پر تھوڑی دیر کے لیے ابھرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اپنے وجود سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا، اس کی آسائش، آرام اور سکون اور اس کے معاملات ایک دھوکے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ یہاں کے تماشے میں اپنا دل لگانے کی بجائے اپنی کامیابی کی ضمانت اس بات کو سمجھے کہ اس کی وجہ تخلیق اور مقصد تخلیق کیا ہے، اور اس مقصد کو جان کر اس کی تکمیل میں اور اس کو مکمل کرنے میں جٹ جائے۔ یہی چیز اس کی دین و دنیا میں کامیابی کا سبب بنے گی اور اس کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہ شعر بھی تشبیہ کی عمدہ مثال ہے۔ ہونٹوں کو نرمی اور نزاکت کی وجہ سے گلاب کی پتی کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مرکزی خیال: محبوب کے ہونٹ نزاکت اور نرمی میں گلاب کی پنکھڑی کی طرح نازک اور ملائم ہے۔ تشریح یا وضاحت: شاعر اپنے محبوب کے ہونٹوں کو نرمی اور نزاکت کی وجہ سے گلاب کی پتی سے ملاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت اور پھول کی پتی کی ملائمت یعنی نرمی میں کوئی فرق نہیں۔ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ چشم دل سے مراد ہے دل کی آنکھ، عالم سے مراد ہے دنیا، اوقات سے مراد ہے حیثیت۔ مرکزی خیال: دل کی آنکھ سے دیکھو تو دنیا کی حیثیت خواب جیسی ہے۔ یہاں بھی صنعت تشبیہ کا استعمال کیا جا رہا ہے اور دنیا کی حیثیت کو، دنیا کی اوقات کو خواب سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ دنیا کو اگر ظاہری آنکھوں سے دیکھا جائے تو یہاں پر حسن اور مادیت پرستی کا دور دورہ نظر آتا ہے۔
लोग दुनियावी साजो सामान और चीज़ों के हसूल को ही अपनी कामयाबी की जमानत समझते हैं, लेकिन अगर इंसान इस दुनिया के अंदर गौर व फिक्र करे और इस दुनिया से इंसान का आना और जाना देखे और दिल की आंखों से यानी कि फिक्र और तदब्बर से अगर इस दुनिया को देखा जाए तो यह हकीकत रोज़े रोशन की तरह आश्कार हो जाती है कि यहाँ की इज्जत, शोहरत, दौलत, रुतबा और मकाम सिर्फ ख्वाब ही हैं, क्योंकि आखिर खाक के पुतले को खाक में ही मिलना है। यहाँ हयात जावेदा यानी कि हमेशा की जिंदगी वही शख्स पा सकता है जो अहले ज़मी और लोगों की खिदमत करेगा, और यही चीज उसकी कामयाबी की जमानत बन जाएगी। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तराब की सी है। इस्तराब का मतलब है बेचैनी, दर से मुराद दरवाजा है। मरकजी ख्याल, इश्क ने मुझे बेचैन और मुस्तरब कर दिया है। इस शेर के अंदर भी सनत तशबीह का इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने हालत की बेचैनी को इस्तराब से तशबीह दी जा रही है। ये शेर इश्क हकीकी और इश्क मजाजी दोनों की तर्जुमानी करता है। जब इंसान को कहीं चैन न पड़े तो वो सुकून से नहीं बैठ सकता। इसी तरह शायर भी इस कदर मुस्तरब हैं कि आलमे बेहोशी और हालत बेखबरी में अच्छे दिनों की आस में उसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। शायर का कहना है कि इसमें उनका कोई कसूर नहीं, क्योंकि हर बेचैन शख्स की यही हालत है। इसी तरह अगर इंसान को इस दुनिया में बहुत मुश्किलात और तकालीफ का सामना करना पड़े और अहले दुनिया उसकी ख्वाहिशात की तकमील ना कर सके तो इज़्तिराब और बेचैनी की हालत में बार बार अपने परवरदिगार के दर की मजावरी पर मजबूर हो जाता है, और यही बेचैनी बसा औकात उसकी दुआओं की कबूलियत की वजह बन जाती है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज उसी खाना खराब की सी है। खाना खराब से मुराद है उजड़ा हुआ शख्स। मरकजी ख्याल, मेरे अशार मेरी पहचान बन चुके हैं। ये शेर दरअसल फसाहत का नमूना है और एक मुकम्मल कहानी और अफसाना बयान करता हुआ नजर आता है। शायर का कहना है कि मैंने जब अपने अशार पढ़े तो पर्दा नशीनों ने मेरी आवाज पहचान कर अपनी कजादाई, अपनी बेवफाई पर पर्दा डालने के लिए कहा, ये तो मीर हैं जिनकी हालत उजड़े हुए शख्स जैसी हो चुकी है। दरअसल उनकी ये हालत और अशार में ये सोच उनकी बेवफाई की वजह से ही है, और उनका दर्द, उनका गम और उनकी तकालीफ उनके अशार से पहचानी जा सकती हैं या नजर आती हैं। यही वजह है कि उनको देखने की जरूरत नहीं, बल्कि उनकी आवाज ही उनकी शायरी और उनके दिल की तर्जुमान बन चुकी है। आतिशे गम में दिल भुना शायद, देर से बू कबाब की सी है। आतिशे गम से मुराद है गम की आग। इस शेर के अंदर भी सनत तशबीह का इस्तेमाल किया गया है। जले हुए दिल को कबाब के साथ तशबीह दी जा रही है। मरकजी ख्याल, लोगों की तरफ से मिले हुए दुख की वजह से मेरा दिल जलकर कबाब हो चुका है। तशरीह, एक अनोखे ख्याल को पेश करते हुए शायर का कहना है कि गम की आग ने मेरे दिल को खाकस्तर कर डाला है, जला डाला है और बर्बाद कर डाला है, और ये फजा में ये कबाब की खुशबू कहीं और से नहीं आ रही, बल्कि मेरा दिल है जो लोगों से मिले हुए दुखों की वजह से जलकर कबाब हो चुका है। इससे एक और नुक्ता यह भी नजर आता है कि इंसान का दिल जब खाक होता है तो ये तकलीफ उस तक ही महदूद रहती है, लेकिन जब वो इसे अपनी शायरी के जरिए या अपने ख्यालात के जरिए दूसरे लोगों तक पहुंचाना शुरू करता है तो इसकी खुशबू हर तरफ फैल जाती है। अब शायर इसी अनोखे को ख्याल को पेश करते हुए कहते हैं कि फिजा में ये जो सोज़ो गम है या ये गर्मी नजर आती है और ये जो जले हुए माहौल की तर्जुमानी की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ मेरे गमगीन दिल की तर्जुमानी है जो कि लोगों से मिले हुए दुखों की वजह से जलकर खाक हो चुका है, जलकर कबाब हो चुका है। मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। नीमबाज से मुराद है अधखुली आंखें। मरकजी ख्याल, मेरे महबूब की अधखुली आंखों में शराब जैसा नशा है। गजल के मक्ता में शायर अपने महबूब की अधखुली आंखों की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मेरे महबूब की अधखुली आंखों में शराब जैसा नशा है और जिसके नशे की वजह से मेरा दिल मखमूर रहता है। ये मोहब्बत की एक उम्दा मिसाल है कि इंसान जब किसी पसंदीदा शख्स को देखता है तो उसका दिल मोहब्बत के जज्बात से लबरेज हो जाता है और एक खास किस्म का कैफ और सरूर उस पर तारी हो जाता है।
यह शेर भी सनत तशबीह की उम्दा मिसाल है। महबूब की अधखुली आंखों को शराब के नशे के साथ तशबीह दी जा रही है। गजल की खसूसियात। मीर तकी मीर की इस गजल का हर शेर सनत तशबीह पर मुश्तमिल है और सनत तशबीह की उम्दा मिसाल है। इल्मुल बयान को पढ़ाने के लिए और सनत तशबीह के लिए इस गजल को खसूसी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तशबीह की तारीफ। बुनियादी तौर पर तशबीह के मानी है मिसाल देना। चुनांचे किसी शख्स या चीज को उसकी किसी खास खूबी या सिफ्त की बिना पर किसी ऐसे शख्स या चीज की तरह करार देना जिसकी वो खूबी सबके यहाँ मारूफ और मानी हुई हो, या किसी चीज को किसी खसूसियत की बिना पर किसी दूसरी चीज से मिलाना तशबीह कहलाता है। मसलन हम ये कहें कि बच्चा चांद की मानंद हसीन है तो ये तशबीह कहलाएगी क्योंकि चांद का हुस्न मुसल्लमा है। अरकान तशबीह। मुशब्बा, जिस लफ्ज को किसी दूसरे लफ्ज से मिलाया जाए। मुशब्बा बिही, जिस लफ्ज से तशबीह दी जाए। हर्फ तशबीह, जिस हर्फ के जरिए तशबीह दी जाए। और वजह तशबीह, जिस वजह से तशबीह दी जाए। मिसाल के तौर पर इस गजल के पहले शेर में हस्ती मुशब्बा, हुबाब मुशब्बा बिही, कीसी है हर्फ तशबीह है, और यही सूरत हाल गजल के बाकी अशार में भी मौजूद है। मीर की शायरी की खसूसियात। मीर की शायरी दर्दो गम, रंजो अलम और आंसू की तर्जुमान है। मीर का कलाम सोजो गुदाज में डूबा हुआ है। उन्होंने अपनी पूरी शायरी को गम के सांचे में ढाल दिया है। दुनिया के आर्जी होने का तसव्वुर उनकी शायरी में एक खास मजमून की हैसियत रखता है। मीर ने अपनी शायरी में इंसानी अजमत और आला इंसानी इक़दार को बड़ी कसरत से अपनी शायरी में बयान किया है। उनके अशार में ऐसा तरन्नुम होता है कि गोया उनमें रूह मौसीकी बसी है। मीर की शायरी में तसव्वुफ, खुदा से मोहब्बत के मज़ामीन जावजा मिलते हैं। अजमत मीर। मीर की अजमत का एतराफ तमाम शोरा ने किया है और यही चीज उनको खुदाई सुखन और शहनशाह गजल साबित करती है। मिसाल के तौर पर गालिब मीर की अजमत का एतराफ कुछ यूं करते हैं। गालिब अपना ये अकीदा है बकौले नासिक, गालिब अपना ये अकीदा है बकौले नासिक, आप बेबहरा है जो मोतकदे मीर नहीं। इब्ने इंशा मीर की अजमत का एतराफ कुछ यूं करते हैं। एक बात बताओ इंशा जी, तुम्हें रेख्ता कहते उम्र हुई। एक बात बताओ इंशा जी, तुम्हें रेख्ता कहते उम्र हुई। तुम सारे जहां का इल्म पढ़े, कोई मीर सा शेर कहा तुमने। शेख इब्राहिम ज़ौक़ मीर की अजमत का एतराफ कुछ यूं करते हैं। न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत जोर गजल में मारा। हसरत मोहानी मीर की अजमत का एतराफ कुछ यूं करते हैं। शेर मेरे भी पुरदर्द व लेकिन हसरत, शेर मेरे भी हैं पुरदर्द व लेकिन हसरत, मीर का सा शेवे गुफ्तार कहां से लाऊं। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया।